Hi guys, welcome to the solutions. Now, the following video will contain the solutions from the recent homework that was given to you. So it contains question from uh, the mole concept assignment 2 that was given. There were two questions which were based on the concept of limiting reagent. That is something that has been covered. And apart from it, the questions from FPO, Get Equipped to Mains, and FBS, which were part of the recent two homeworks, are going to be covered in this session. All right, so let's start with the first set of questions are from the assignment, which were based on the concept of limiting reagent. Now, as you can see, in this particular 16th question, there was data given that atoms A, B, and C combine to form compound in atomic ratio 1 is to 6 is to 2. Right, so this 1 is to 6 is to 2, that ratio is something which translates into the coefficient if I kind of write it as a balanced equation. Right, now with this knowledge we can follow the same method of concept of limiting reagent that we did in class. First calculate the moles and then based on stoichiometric ratio comment upon which is the limiting reagent. In this case we find that A and C both are the limiting reagent, and we can perform analysis with respect to either of them, and we'll get the answer of the moles of the compound. And since atomic weight of A, B, and C are given, we are able to determine the molecular weight, which gives us the mass of compound form. Similarly, in 17th question, you have been given that compound contains X, Y, and Z in 1 is to 2 is to 3 ratio, which leads us to the coefficients of X, Y, and Z as 1, 2, and 3 as part of the balanced equation. Now the quantity of X, Y, and Z is given sometimes in mass, sometimes in number of atoms and moles. Now since we are given the atomic weight of X, we can actually get its moles as 5 by 60, and the other species Y and Z, we can also get their moles. And again, based on the stoichiometric ratio, we understand that Z is actually the limiting reagent. So we do the analysis with respect to Z, and as you can see from the coefficients, that 3 is the coefficient of Z and 1 is the coefficient of the compound. Right, so applying unitary method, we'll get our answer that how many moles of compound is going to form. Now we can calculate the molecular weight of the compound. It will include the atomic weight of Y, and since we have got the moles and molecular weight is actually in terms of Y only, but mass is actually given as a numerical value. So we equate moles into molecular weight equal to the mass that has been given, and we'll get the value of Y, that is the atomic weight of Y. All right, now let's come to the FBO part. In the FBO section of the booklet, there were some questions which were based on mole concept, as well as not mole concept, in fact analyzing reactions, as well as on the concept of limiting reagent. Right, some simple analysis as well as analyzing concept with limiting reagent. So 45th question was actually a simple question which simply talks about analysis between reactor and product. Straightforward solution, needs no detailed explanation. 46th, okay, so 46th is something which has reactant data given to you, and since there are two reactants and दोनों का data given है, ठीक है, so automatically this should come to your mind that I should check for the case of limiting reagent or not. जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में if you notice, तो just प्रोडक्ट कितना बना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दिया, so you can just directly establish the relationship between the two species. यहाँ पर there were two reactants and both का data was given. That meant that concept of limiting reagent has to be explored by the student themselves. So we find on our based on a calculation that SO2 is the limiting reagent, and based on which you do the mole analysis. Right, this is the mole analysis, and you get the answer to the unknown. All right, so 47th question, again a simple question. Acid base reaction है, इसका balancing ये मैंने आपको क्लास में समझाया था. How do we write this salt? Right, this was something that was taught in the class, and then rest is simple mole analysis again. Right, you have been given 100 grams of magnesium hydroxide and 58 is the molecular weight of magnesium hydroxide. So you get how many moles of H3PO4 will be forming or will be consumed by the given moles of MgOH whole twice. All right, 48th, straightforward question, just a combustion reaction. You should know
this as a balanced equation that methanol plus O2 is going to give you CO2 and H2O. And again, using the balanced coefficients, we can straight away get to the answer. 49th, yeah, it is something of a question which is similar to the assignment question, right? Data भी almost same ही है. In fact, if I remember, I think answer भी same ही है. तो इसमें आपको x का data given है and X2O5 का data given है in terms of the mass, right? And you can write a balanced equation which can help establish a relationship between them, or you can use O2 ka calculation also, which makes calculation a little easier. That oxygen gas ka mass by law of conservation of mass comes out to be 1.6 grams, right? So 1.6 gram means how many moles? So 1.6 divided by 32. So you know moles of O2 and you have to determine the moles of X, and you already know their coefficients. So you simply do the cross multiplication, you do the mole analysis, and based on that you will get the moles of X. Then 50th question, right? This is not something jiska commonly आपको reaction पता होगा, so ठीक है, it was something that was then given to you as part of the homework questions themselves, that this is the reaction that is going to happen, and just then some थोड़ा सा English use किया हुआ है इसमें. रेसिड्यू का मास पूछा है. अब आप नोटिस करोगे फिजिकल स्टेट्स में तो इट इज Ag solid that is left behind. CO2 gas and O2 gas are liberated, so that is not going to be the part of residue. So you are being basically asked that to spend 7 gram of Ag2CO3, so how much Ag is going to be forming. So again, you do the mole analysis. यहाँ मास से एक्चुअली आपके Ag2CO3 के मोल्स आ गए हैं, इनके कोफिशिएंट्स 1 and 2 है, तो यू सिंपली डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टू गेट द मोल्स ऑफ Ag, एंड फ्रॉम दैट यू गेट द मास ऑफ Ag. ठीक है, Ag का मास एटॉमिक वेट 108 है. ठीक है, नाउ आप वन मोर थिंग नोटिस करना कि बुकलेट के इन क्वेश्चंस में आपको एटॉमिक मास नहीं दिया है. फॉर एग्जांपल सिल्वर का एटॉमिक मास नहीं दिया है. नाउ ऐसा नहीं है कि मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि सिल्वर का एटॉमिक मास आपको पता होगा. इनफैक्ट जेई भी आपसे एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि सिल्वर का एटॉमिक मास पता होगा. ठीक है, लाइक 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट्स का फिर भी एक नॉलेज रहता है, बट अदरवाइज आप नोटिस करोगे जेई के प्रीवियस ईयर पेपर्स आप निकाल कर देखोगे तो उसमें दे गिव द एटॉमिक मास ऑफ सब्सटेंसेस, स्पेशली दे आर इफ हायर एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स, तो डेफिनेटली. देन 51 में similar combustion reaction. Combustion means ethanol plus O2 is going to give you CO2 and H2O. Do the balancing bit, straightforward answer. 52 was something again जिसके लिए रिएक्शन इतना कॉमन नहीं है, इसलिए अगेन मैंने आपको होमवर्क में क्वेश्चन के साथ में इसका रिएक्शन मेंशन करके दे दिया था. दैट KClO3 को जब डिकम्पोज करते हैं तो उसमें से KCl सॉलिड बनता है एंड O2 गैस लिबरेट होता है, राइट? दिस इज द गैस दैट इज लिबरेटेड. So now it is asking what is the loss in mass. So loss in mass क्यों होगा? Because of the mass of O2 that got liberated. ठीक है? So this is something that we do the calculation of, that how much percentage is going to be the O2 का mass. So we start with saying that, let's say we have 1 mole of KClO3, which means 122.5 grams, because it is a molecular weight given a question was का. And based on that, how much O2 will be forming. As you can see from the stoichiometry, 1 mole से 3/2 mole O2 form होगा, which turns out to be 48 grams. ठीक है, this is for O2. So as a result, you can then determine percentage loss as mass of O2 upon mass of compound into 100%. So you'll get the answer roughly around 39%. All right, 53, again a straightforward question. Equation सब दिया हुआ है, H2O का mass दिया हुआ है, iron का mass पूछा है. ठीक है, can't expect a simpler question than this. 54th question. अच्छा, एक 53rd में again, like if you are still again confused about the fact कि Fe का atomic mass हमें कैसे पता होगा, don't worry, question में आपको एग्जाम में डेफिनेटली मिल जाएगा. ठीक है, जेई के एडवांस एग्जामिनेशन में ये सब एटॉमिक मास का इन्फॉर्मेशन मिलता है. अभी बुकलेट में आपको नहीं मिलेगा. ठीक है, बुकलेट में कई क्वेश्चंस में मिल सकता है, कई क्वेश्चन में नहीं मिलेगा आपको. हम अपनी तरफ से जरूर कोशिश करेंगे दैट कॉमन एलिमेंट्स का एटॉमिक मास आपके सामने आते रहे, आप उनके लिए एफर्ट मारते रहो. ठीक है, ऑल राइट. 54th क्वेश्चन, स्लाइटली ट्रिकी क्वेश्चन. मे बी 2-3 लाइन्स एक साथ क्लब करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा दैट इट इज एक्चुअली अ क्वेश्चन ऑफ सीरीज रिएक्शन. ठीक है, तो इसमें कैसा हो रहा है, कैल्शियम क्लोराइड एंड NaCl का मिक्सचर है. ठीक है, एंड समथिंग डेटा इज गिवन, एंड इन द एंड आपसे कॉम्पोजिशन पूछा है कि कितना आउट ऑफ द 10 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड है, राइट? तो वी स्टार्ट विद सेइंग दैट ओके, लेट द मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड बी A grams, तो NaCl का मास 10 - A grams आ जाएगा.
ठीक है. Now when you read the line of the question, it says that calcium chloride is treated with Na2CO3. ठीक है, and calcium is precipitated as calcium carbonate. ठीक है, तो ये basically calcium chloride plus Na2CO3 is giving calcium chloride, and then you can find the next product will be NaCl only. ठीक है, although काम का नहीं है. And then the second reaction happens in which calcium chloride is heated and results in formation of calcium oxide. So अगर आप नोटिस करोगे तो आपको कैल्शियम ऑक्साइड का इन्फॉर्मेशन दे दिया है और कैल्शियम क्लोराइड का इन्फॉर्मेशन पूछा जा रहा है. तो इट इज जस्ट सिंपल सीरीज रिएक्शन में आपको कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है. आप नोटिस करोगे कोफिशिएंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट इज सेम, राइट. तो जितना मोल्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड है उतना ही मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट भी होगा. तो अगर हमने A ग्राम्स लिया था एंड कैल्शियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड आप देखोगे तो 111 आएगा. ठीक है, सो ये मोल्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड हो गए. दैट विल बी सेम एज मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, राइट, बिकॉज दोनों का कोफिशिएंट 1 1 है. सिमिलरली जब कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड का आप स्टोइशियोमेट्री देखोगे रिएक्शन में, दोनों का कोफिशिएंट 1 1 है. सो मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म इज आल्सो A/111. So mass of calcium oxide can be written as moles into its molecular weight, which is given. This is the given information that it is 1.62 grams, and from here you calculate the value of A. So this is 54th question. 55th question is again straightforward. BaCl2 and Na3PO4 से combine करके बेरियम फॉस्फेट Ba3PO4 होल्ड वाइज बना रहे हैं. तो अभी ये बैलेंस्ड कोएफिशिएंट्स लिखना आना चाहिए. ठीक है, इतना इन्फॉर्मेशन मिलने पर आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप रिएक्शन खुद से बना लोगे और कोएफिशिएंट भी खुद से लिख लोगे. बाकी देन इट बिकम्स अ केस ऑफ आइडेंटिफाइंग द लिमिटिंग रिएजेंट, बिकॉज दो रिएक्टेंट्स का डेटा दिया हुआ है, राइट. सो इट्स अ केस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट. You solve for it and do the analysis. All right, then 56th, again acid base reaction. ठीक है, काफी कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, एसिड क्या है, बेस क्या है, सॉल्ट क्या है. सो यू डोंट रियली नीड टू मस्ट वरी अबाउट इन्फॉर्मेशन नहीं है इक्वेशन को लेकर. दैट्स समथिंग व्हिच इज स्ट्रेट फॉरवर्ड. एंड मोल्स भी दिए हुए हैं, डायरेक्टली ज्यादा मेहनत करनी नहीं है. इट्स अ केस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट. अगेन सॉल्व एंड गेट द आंसर. ठीक है, देन 57th में वापस से बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. मोल्स दिया हुआ है, स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो आप निकालोगे, आपको पता पड़ जाएगा दैट बी इज द लिमिटिंग रिएजेंट, एंड देन यू डू द मोल एनालिसिस with respect to B to identify the amount of C that is found. ठीक है, straightforward. That's what actually was done in the previous two questions also. 55 and 56 are almost on the same lines, like hardly any difference between these questions. Really simple questions, must होने चाहिए थे आपसे. 58th question में, ठीक है, sometimes students make careless mistake in calculations, but वापस से observe करना. Step 1 balanced equation, step 2 calculating moles, step 3 calculating the ratio, and then identifying if it's a case of limiting reagent or not. And we did identify it's a case of limiting reagent. And then this is the step 5 you can say, where we perform the mole analysis. ठीक है, mole analysis करके आपको moles of Al4C3 मिल जाएंगे, which you multiply by its molecular weight to get the mass. Okay. Then 59 series reaction का question है, straight forward है. जैसे आपको मैंने बताया था, coefficients are to be used within reaction. ठीक है, across reaction जब B का अमाउंट यहाँ से यहाँ लिखना है, वहां पर कोफिशिएंट के बारे में नहीं देखेंगे. जितना टोटल B बनाया है वो एज इट इज अगले रिएक्शन में यूज करना है. ठीक है, फिर विद इन रिएक्शन एनालिसिस में आपको कोफिशिएंट देखना है एंड उससे डिसाइड करना है कितना अमाउंट बन रहा है. देन अगले केस में जब आप अगले रिएक्शन में जा रहे हैं तो कोई कोफिशिएंट का रोल नहीं है, पूरा का पूरा 8 मोल आप यूज करोगे C का इन द थर्ड रिएक्शन, एंड देन बेस्ड ऑन दैट कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ D दैट इज फॉर्म्ड. ठीक है, सो ये FBO के क्वेश्चंस थे. नाउ लेट्स कम टू गेट इक्विप्ड टू मेंस. ठीक है, इसमें भी सिलेक्ट क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ. सबसे पहला क्वेश्चन इज एक्चुअली अगेन सीरीज रिएक्शन. ठीक है, थोड़ा सा लैंग्वेज ट्रिकी है इसका, मे बी आपको नहीं रीड करने में आया होगा, बट नोटिस करना, व्हेन 1 मोल ऑफ KClO3 इज थर्मली डिकम्पोज. तो KClO3 के थर्मल डिकम्पोजिशन करने पर KCl एंड ऑक्सीजन गैस बनता है. ठीक है, दिख रहा है वो. सो KClO3 की डिकम्पोजिशन पर KCl एंड O2 गैस बनता है. एंड जो क्वेश्चन का लैंग्वेज है, एक्सेस ऑफ अल्यूमिनियम इज बर्न्ड इन द गैसियस प्रोडक्ट.
ठीक है, तो ये KClO3 का प्रोडक्ट जो है O2, उसमें ये एक्सेस ऑफ अल्यूमिनियम को बर्न करा जा रहा है। ठीक है, सो दैट इज व्हाट मेड द क्वेश्चन अ सीरीज रिएक्शन। ठीक है, मे बी आई विल कंप्लीटली अग्री अगर आपसे नहीं हुआ है तो, बिकॉज थोड़ा सा लैंग्वेज इट्स नॉट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इजी टू अंडरस्टैंड, थोड़ा सा घुमाया हुआ है। ठीक है, धीरे धीरे आदत पड़ेगी ऐसे क्वेश्चन को करने की। सो 1 मोल ऑफ KClO3 पोटेशियम क्लोराइड, एंड उससे कितना O2 मिल रहा है, 3/2 एज यू कैन सी। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने बेस्ड ऑन द कोफिशिएंट्स। अब यही 3/2 एज इट इज आप अगले रिएक्शन में लेके चले जाओ। ठीक है, एंड आप नोटिस करो कि उससे कितना Al2O3 बनेगा। तो एज यू कैन सी फ्रॉम द कोफिशिएंट्स, राइट, फ्रॉम द कोफिशिएंट्स 3/2 मोल से 1 मोल बन रहा है, तो ऊपर से भी 3/2 मोल्स आ रहे हैं, तो उससे कितना बनेगा, यू विल गेट द आंसर एज 1 मोल इटसेल्फ, राइट। सो दैट्स योर आंसर। Then third question is actually an interesting question, which gives the amount of reactants that 10 moles है, 15 moles है, and it also talks about that अमोनिया का 10 moles बन रहा है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि फिर एंड में कितना N2 and 3H2 and H2 का मोल्स बचेगा। ठीक है, रिमेनिंग मोल्स ऑफ N2 and H2। अब यहाँ पर रिएक्टेंट्स का मोल्स दिया हुआ है, एंड हमने केस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई कर लिया। लाइक मोल्स दिया हुआ है, हमने स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो निकाला, एंड द स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो डिडंट कम इक्वल, एंड व्हाट वी फाउंड वाज दैट लोएस्ट वैल्यू वाज फॉर H2, दैट मींस लिमिटिंग रिएजेंट। तो हम H2 के हिसाब से एनालिसिस करने लग गए। ठीक है, H2 के हिसाब से एनालिसिस कैसे करा, सबसे पहले हम लोगों ने H2 के हिसाब से देखा कि 15 मोल्स के पूरे 15 मोल्स कंज्यूम हो जाएंगे, एंड ये 0 बचेगा एंड में। ठीक है, क्योंकि लिमिटिंग रीजन हमेशा कंप्लीटली कंज्यूम होता है। एंड उसके बेसिस पर फिर हमने अमोनिया का कैलकुलेशन करा बाय मोल एनालिसिस, तो अमोनिया के 10 मोल्स बन के आए। ठीक है, विच वाज एक्चुअली द डेटा दैट वाज गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, व्हाट इफ दिस वाज गिवन 8 मोल्स। ठीक है, ये बोलते थे कि मतलब 8, जस्ट मैंने नंबर लिया 8, 7 समथिंग लेस देन 10 अगर ये होता, तो फिर आप क्वेश्चन में क्या सोचते हैं। ठीक है, देन लिमिटिंग रिएजेंट क्या पूरा कंज्यूम हो जाता, और लिमिटिंग रिएजेंट भी थोड़ा बच जाता, व्हाट वुड हैव बीन दैट केस। ठीक है, आई वुड वांट यू टू थिंक ऑन इट, दिस इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द क्लास। तो आप लोग भी सोचो इसके ऊपर। एंड अभी तो क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इस केस में एक्चुअली लिमिटिंग रिएजेंट पूरा कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, 0 मोल्स बचेंगे H2 के, एंड उससे हम लोग एनालाइज करके देख रहे हैं, तो 10 मोल्स अमोनिया बनना चाहिए, एंड वही 10 मोल्स एक्चुअली क्वेश्चन में दिया भी हुआ है। ठीक है, सो वी आर नॉट वरिंग ऑन द फैक्ट कि लिमिटिंग रिएजेंट पूरा कंज्यूम होगा कि नहीं होगा। ठीक है, नाउ बेस्ड ऑन द एनालिसिस फ्रॉम H2, हम लोग N2 का भी अमाउंट देख सकते हैं। ठीक है, H2 के 3 मोल से 1 मोल N2 का कंज्यूम हो रहा है, तो 15 मोल्स कंज्यूम होने पर 5 मोल्स N2 के कंज्यूम होंगे, 5 मोल्स कंज्यूम होंगे तो 5 मोल बच भी जाएंगे। ठीक है, दिस इज समथिंग दैट इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड एनालिसिस। ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधे सीधे इक्वेशन दी हुई है, आपको इक्वेट करना है, कोफिशिएंट्स का ध्यान रखते हुए मोल्स का एनालिसिस करना है। Fifth question, again straightforward, maybe if you did not know the equation, so here's the equation, and in fact this is something which I mentioned in the class as well. वैसे तो आपको आना चाहिए था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का इक्वेशन, अगर नहीं आता है तो आप ये हेल्प ले लो, बट अगेन एज आई सेड आना चाहिए था ये वाला। ठीक है, देन सेवेंथ क्वेश्चन में देयर इज दिस हाइड्रोकार्बन C10H6, उसका कंबशन हो रहा है, तो उसका बैलेंस्ड इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं, x के टर्म्स में ही हम लोग बैलेंसिंग कर लेंगे। 10 कार्बन इधर है, तो यहाँ से 10 इसका कोफिशिएंट बनाया, x हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो x/2 H2 का कोफिशिएंट बनाया। अब O2 इस तरफ आप नोटिस करोगे तो 20 प्लस x/2 है, तो एज अ रिजल्ट यहाँ पर O2 का कोफिशिएंट 10 प्लस x/4 होना चाहिए। ठीक है, तो ये बैलेंसिंग हम लोगों ने काफी बार क्लास में देख ली है कैसे करनी है। इस बैलेंस्ड कोफिशिएंट के साथ में अब हम मोल एनालिसिस कर सकते हैं। दिस इज सिंपल मोल एनालिसिस दैट आई हैव डन कि C10H6 का कोफिशिएंट 1 है, O2 का कोफिशिएंट 10 प्लस x/4 है, एंड उनके मोल्स दिए हुए हैं, तो वी डू अ क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ x is 12, right? Now C10H12 might not be hydrocarbon,
बट दिस इज जस्ट अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, ठीक है. यू समटाइम्स कम अक्रॉस सच डेटा, कैलकुलेशन में इजी बनाने के लिए दे दिया जाता है. सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट कि अरे ये तो रियल हाइड्रोकार्बन ही नहीं है, ओहो आई हैव फाउंड गोल्ड, नाउ आई हैव discovered that this is an incorrect question. Please don't get into all of that. 10th question में similar to actually one of the questions that we have done previously, X2O3 फॉर्म करना है, right? This is X2O3. तो उसका बैलेंस इक्वेशन हम लोगों ने लिख लिया है कि X का कोफिशिएंट 2 एंड O2 का कोफिशिएंट 3/2, ठीक है. अब इसका मास 1 ग्राम है, इसका मास 1.16 ग्राम है, ठीक है. इस बार मैंने थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन करा, ठीक है, एज कम्पेयर टू व्हाट आई डिड प्रीवियसली. मास से मैंने मोल्स निकाल लिए. मोल्स कैसे निकाले? मास डिवाइड बाय द एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट. तो एटॉमिक वेट मैंने एक्स का एक्स से ही रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है. दिस इज द एटॉमिक वेट. तो इसके मोल्स 1/x आ गए एंड X2O3 का मास दिया हुआ है, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? 2 × x + 48. तो ये मैंने उसका मॉलिक्यूलर वेट लिया. तो मुझे दोनों के मोल्स मिल गए, एक्स के टर्म से मिले एंड इनका कोफिशिएंट 2 और 1 मुझे पता है, तो मैंने इनके बीच में यूनिटरी मेथड अप्लाई कर दिया एंड उससे मैंने फिर एक्स सॉल्व करा, तो मेरा आंसर 150 ग्राम पर मोल आया, ठीक है. दिस वाज वन ऑफ द वेज इन व्हिच आई हैव डन द क्वेश्चन. दिस इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम हाउ आई डिड प्रीवियसली. You could have you could have chosen to done it in the previous manner as well. All right. Then 11th question. 11th question is straightforward question. Aluminium ऑक्सीजन कंबाइन करके Al2O3 बना रहे हैं, बैलेंसिंग आपको आने चाहिए एंड उसके बाद सिंपल मोल एनालिसिस करके यू हैव टू गेट द रिजल्ट, ठीक है. देन 11th के बाद मैंने 41th क्वेश्चन लिखे हैं यहाँ पे. 13th में जस्ट इसके बाद दिखा रहा हूँ, इसमें मैंने 2 मेथड करे हैं एक्चुअली. तो अभी 41 पे फोकस कर लो. 41st क्वेश्चन इज एक्चुअली यू नो स्ट्रेट फॉरवर्ड. इक्वेशन दिया हुआ है, NaOH और H2O के बारे में बोला जा रहा है एक्सेस, तो एनालिसिस एल्यूमिनियम के हिसाब से होगा, दैट विल बी योर लिमिटिंग रिएजेंट एंड मास दिया हुआ है, तो आपने उसका मोल्स निकाल लिया एंड कोफिशिएंट्स को यूज करके मोल्स एनालिसिस कर लिया, ठीक है. तो आपको मोल्स मिल जाएंगे, H2 के मोल्स मिल गए, तो मोल्स से आपको वॉल्यूम मिल जाएगा, ठीक है. इट इज स्लाइटली ब्लर्ड इमेज है. दिस इज 33.6 लीटर, ठीक है. 3/2 मोल्स बने हैं इसके. All right, 13th question. 13th question slightly you know long मेथड भी है और थोड़ा सा बेटर टू सॉल्व मेथड भी है. अब इसमें आप नोटिस करना कि NaBr एंड KBr एंड NaBr का मिक्सचर आपको दिया हुआ है जिसका टोटल मास 0.56 ग्राम्स है, ठीक है. एंड एंड में आपको KBr का वेट पूछा है, तो मैंने KBr का वेट का वेरिएबल मान लिया x, तो NaBr का वेट हो गया 0.56 माइनस x ग्राम्स, ठीक है. अब इसके बाद में यहाँ पर बोला जा रहा है कि NaBr एंड KBr का रिएक्शन कराया जा रहा है Ag प्लस आयंस से, विच इज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन दैट इज गोइंग टू हैपन. So I have written both the reactions in front of you, ठीक है. सिंपल KBr जब Ag प्लस के साथ मिलाएंगे तो Ag प्लस एंड Br माइनस आयन मिलकर ये सॉलिड प्रेसिपिटेट बना लेंगे एंड K प्लस आयन सोल्यूशन में ऐसे फ्रीली रहेगा. Similarly, the case with NaBr, that Ag plus and Br minus are going to combine to form this AgBr precipitate, and Na plus ions will be there in the solution. So as you can see, the stoichiometry is simple, 1:1 का रेशियो, ठीक है. इनके कोफिशिएंट्स आप नोटिस करोगे तो इसका कोफिशिएंट भी 1 है, इसका कोफिशिएंट भी 1 है, NaBr का कोफिशिएंट भी 1 है, AgBr का कोफिशिएंट भी 1 है. तो अब क्योंकि मैंने मास KBr का लिया था x ग्राम्स, तो इसके मोल्स हो गए x/119. 119 क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KBr, ठीक है. ये आप कैलकुलेट कर सकते हो. ब्रोमीन atomic mass is actually 80, very close to 80, ठीक है. atomic weight of potassium, let me write यहाँ पर element, potassium is 39, bromine is almost 80 and sodium is 23, right. इन सब का यूज करते हुए हम लोगों ने यहाँ पर ये कैलकुलेशन करा है. सो Ag का 108, ठीक है. तो अभी यहाँ पर x/119 मोल्स हैं एंड दोनों का कोफिशिएंट 1 है, तो AgBr के मोल्स भी कितने हो जाएंगे? सेम x/119, ठीक है. सिमिलरली NaBr का मास 0.5 माइनस 6 है एंड मॉलिक्यूलर वेट 103 है, तो इसके मोल्स एंड AgBr के मोल्स विल बी द सेम बिकॉज अगेन 1 कोएफिशिएंट्स है. तो AgBr के टोटल मोल्स हमने निकाल लिए x/119 एंड 0.5 माइनस x/103. तो टोटल मोल्स से आप टोटल मास निकाल सकते हो, यू मल्टीप्लाइड बाय द मॉलिक्यूलर वेट and as a result you will get the mass, and this is the given data of the mass of AgBr. तो इन दोनों को आप इक्वेट करो, उससे आप x सॉल्व करोगे.
ठीक है, थोड़ी सी डिफिकल्ट सॉल्व होती है इस केस में, क्योंकि डिनोमिनेटर में नंबर्स आ गए हैं, फ्रैक्शंस में आप डील कर रहे हो, ठीक है। दैट्स व्हाई आई हैव शोन अनदर मेथड जहां पर मैंने एक्चुअली इंस्टेड ऑफ अज्यूमिंग मास आई हैव अज्यूम्ड द मोल्स ऑफ केबीआर एंड एबीआर एज ए एंड बी, ठीक है। तो दो वेरिएबल हो गए। अब पहली इक्वेशन तो टोटल मास दिया हुआ है 0.56 ग्राम, सो ए इंटू उसका मॉलिक्यूलर वेट एंड बी इंटू NaBr का मॉलिक्यूलर वेट विल गिव यू द टोटल मास। तो ये पहला इक्वेशन हो जाता है आपका, ठीक है। ये मैंने मोल्स के टर्म्स में करा है। इससे मैं क्या कर रहा हूँ कि डिनोमिनेटर में नंबर्स नहीं लेके आ रहा हूँ, फ्रैक्शंस में नहीं लेके आ रहा हूँ, तो थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाती है, ठीक है। एंड देन बेस्ड ऑन द सेम इक्वेशंस जो हमने देखी है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि मोल्स ऑफ AgBr इज इक्वल टू A प्लस बी, ठीक है। दैट इज एक्चुअली मोल्स ऑफ KBr प्लस NaBr, एंड एक्चुअली दिस वाज समथिंग दैट वी हैड सीन इन द रिएक्शंस, क्योंकि कोफिशिएंट 1 1 थे, तो जितने मोल्स KBr के हैं उतने मोल्स AgBr के फॉर्म करेंगे, एंड जितने मोल्स NaBr के हैं उतने मोल्स AgBr के फॉर्म करेंगे। तो अगर मैंने इनके A और B मोल्स माने हैं तो AgBr के मोल्स A प्लस B हो जाएंगे, ठीक है। दैट इज समथिंग दैट वी हैव रिटन हियर एज वेल। सो you have total moles as A plus B, and now mass is given to you, तो A plus B into molecular weight of AgBr is given the mass. So दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, इनको आप थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस केस में एक्चुअली सॉल्विंग थोड़ी बेटर होगी बिकॉज फ्रैक्शंस में नहीं है, स्लाइटली फास्टर अप्रोच हो गया ये, ओके। सो दीज वर द क्वेश्चंस फ्रॉम द गेट इक्विप्ड सेक्शन। नाउ लेट्स मूव टू द फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव सेक्शन। इसमें भी मैंने कुछ आपको क्वेश्चंस दिए थे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन गिवन देयर, दैट इज 53। Now again data given of two reactants, तो आप एक बार खुद से check करोगे whether it is a case of limiting reagent or not. Step 1, write the balanced equation. Step 2, check the moles. Step 3, check the stoichiometric ratio. Step 4, identify the limiting reagent, and step 5, do the mole analysis. Right? So step 4 limiting reagent था and step 5 mole analysis था. इसमें यहाँ पर limiting reagent SO2 आता है, and based on that you are able to get the moles of SO3. 54th अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, जस्ट इक्वेशन वगैरह सब दिया हुआ है, इंस्टेड ऑफ मोल्स आपको मास दे दिया है। तो स्टेप 1 कैलकुलेट द और राइट द इक्वेशन, स्टेप 2 कैलकुलेट द मोल्स, स्टेप 3 चेक द स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो, स्टेप 4 आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट, एंड स्टेप 5 डू द मोल एनालिसिस। स्ट्रेट फॉरवर्ड, do the mole analysis with respect to the limiting reagent. 55th straightforward, needs no explanation. 56th straightforward, needs no explanation. 56th में भी बस आपको मास दिया हुआ है, तो आप जिस तरीके से सेम स्टेप्स आप फॉलो करोगे लिमिटिंग रिएजेंट वाले, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 50 ये पूरा एनालिसिस ये मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है किस तरीके से हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट के रिस्पेक्ट में एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। सो आई नीड नॉट एक्सप्लेन इट अगेन। Then 57th question is also something straightforward. इसमें कुछ खास एनालिसिस करना नहीं है. Let the mass of NaCl be m. So m डिवाइड बाय 58.5 ये मोल्स आ जाएंगे, ठीक है। Then 2 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो मोल्स ऑफ आयंस आ जाएंगे, एंड नंबर ऑफ आयंस के लिए आप Na से मल्टीप्लाई कर दो. 2 से क्यों मल्टीप्लाई करा यहाँ पर? बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट NaCl के एक यूनिट में 2 आयंस हैं, ठीक है। सिमिलरली MgCl2 में आप नोटिस करोगे तो MgCl2 का ये मास दिया हुआ है, तो मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करा तो मोल्स आ गए, एंड इनटू 3 क्यों करा? बिकॉज MgCl2 के एक यूनिट में 3 आयंस हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ आयंस दोनों साइड इक्वेट हो गए, उससे आपने मास का वैल्यू निकाल लिया। ऑलराइट, 58th क्वेश्चन, I think this was the last question in the homework, yeah. So in this again you are given a mixture, ठीक है। स्लाइटली शॉर्टर वे में अप्रोच कर रहा हूँ, अगेन यू कैन डू दिस क्वेश्चन इन मल्टीपल वेज, ठीक है। स्लाइटली शॉर्टर वे में अप्रोच करा है मैंने यहाँ पर। मास ऑफ मिक्सचर को आई लेट 100 ग्राम्स, क्यों? क्योंकि कोई हार्ड डेटा नहीं है, सिर्फ एक परसेंटेज का डेटा है, तो ठीक है मैंने मास ऑफ मिक्सचर 100 ग्राम मान लिया। तो इससे मास ऑफ Ag आ गया। अब मास ऑफ क्लोरीन से x ग्राम मैंने लिख लिया, तो मास ऑफ ब्रोमीन 39.06 माइनस x आ जाएगा, ठीक है। दिस इज व्हाट यू हैव टू सॉल्व फॉर। नाउ एज यू कैन सी दैट थोड़ा सा यहाँ पर सोचना, अब मुझे x अगर फाइंड आउट करना है तो मेरे लिए एक रिलेशनशिप क्या रहेगा, दैट मोल्स ऑफ Cl प्लस मोल्स ऑफ Br इज इक्वल टू मोल्स ऑफ Ag, ठीक है। इस मिक्सचर में AgCl एंड AgBr है, ठीक है। तो जितना मोल्स क्लोरीन का होगा उतना ही मोल्स यहाँ पर, लेट मी यूज डिफरेंट थिंग्स, जितना मोल्स क्लोरीन का होगा उतना मोल्स Ag का होगा, एंड जितना मोल्स Br का होगा उतना ही मोल्स Ag का भी होगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से नोटिस करूं टोटल मोल्स ऑफ Ag कितना हो गया, तो इट विल बी सम ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन।
right? So that is what I've written as a equation here. And moles क्या होते हैं? Mass upon atomic mass. So mass हमने क्लोरीन का x माना था, divide by its atomic mass. Mass of bromine 39.06 minus x है, divide by its atomic mass is equal to mass of silver which is 60.94 grams upon its atomic weight 108. तो इससे आप सॉल्व करोगे तो आपको x का आंसर आ जाएगा, ठीक है? So these were the questions that were part of the homework. Now I'll see you guys in the next class, and हम लोग अब थोड़े से और difficult questions and difficult cases की तरफ move करेंगे. Thank you guys.